السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين۔ ہم آج آخری پہلو پڑھیں گے اسی کا، کہ جس میں ہم نے یہ 4 پہلو تھے کہ جب تک اس کے بارے میں معلومات ہو ہم جملے نہیں بنا سکتے، لیکن ہم اس کے پہلے چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس کا تھوڑا سا وہ عدد ہم نے پڑھا تھا، پچھلا ایک پہلو تھا عدد نمبر، اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ اور تازہ کر لیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پھر ہم وسعت کی طرف چلیں گے، جیسے کیپیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عدد میں واحد تھا، مثنیٰ تھا، جمع تھا۔ پھر مؤنث کے لیے بھی مؤنث واحد، مؤنث مثنیٰ، مؤنث جمع۔ تو جو اعراب کی شکل تھی وہ ہے رفع تھی، نصب تھی، جر تھی۔ اعراب کے متعلق میں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنے بھی پہلو پڑھیں گے اعراب کی جو استعمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ آخری وقت بھی ہمیں اعراب سے اس کو لفظ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اعرابی حالت یہ ہے کہ رفع جو ہے اردو میں فاعلی حالت کہتے ہیں، اس کو نصب مفعولی حالت کہتے ہیں، اضافی حالت اردو میں کہتے ہیں، اور جر جو ہے اردو میں کہتے ہیں۔ تو ہمیں واحد ہے، تو واحد مسلمون کیا ہے؟ ایک مسلمان یا کوئی مسلمان، ایک مسلمان یا کوئی مسلمان۔ لیکن اس کے 2 مسلمان اگر ہوئے تو ہم مسلمان کہیں گے اور ایک الف لگائیں گے جب تک ایسا ایکسیپشن نہ آئے تو مسلمان ایک الف لگاتے ہیں، جیسے محمدن میں ہم ایک الف آگے لگاتے ہیں۔ تو مسلمان مانے ایک مسلمان، لیکن اس کے بارے میں ایک مسلمان، اس کے بارے میں ایک مسلمان۔ تو پھر یہ الگ جو ہے، یہ جو ہے مفعولی حالت میں ہے، یہ کام کرنے والا ہے اور اس کے کام کا اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے، معنی دونوں کے سیم ایک مسلمان۔ مسلمین اس کے معنی بھی ایک مسلمان ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی اضافی حالت ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا استعمال ہم ایسے کریں گے کہ جب بھی کوئی فعلی جملہ بنانا ہوگا تو ہر فعلی جملے میں ایک کام کرنے والا ہوگا، ایک جس پہ کام کا اثر ہوگا، اور ایک اضافی حالت اس فعل کے بارے میں مزید کچھ بتایا جا رہا ہوگا، تو ہم اس کو جر کی کیفیت میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم نے ایک تھا تو جاء مسلمون، اس کے مطلب آیا ایک مسلمان۔ میں نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ ہم اردو میں عام طور پہ مسلمان نے اور مفعول کو مسلمان کو کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں آپ لفظ سے پہچانیں۔ اس میں لگ رہا ہے کہ جو کام کرنے والا تھا، آنے کا کام کس نے کیا ہے؟ مسلمان نے۔ تو جاء مسلمون، ایک مسلمان آیا۔ رائتو، میں نے دیکھا، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آرائت الذی، کیا تم نے دیکھا؟ رائتا تم نے دیکھا، رائتو میں نے دیکھا۔ تو رائتو مسلمن، یہ دیکھیے 2 زبر کے ساتھ ایک الف آیا، مفعولی کیفیت ہے۔ میں نے دیکھا، میں فاعل ہوں، رائتو میں فاعل ہوں، میں نے دیکھا، اور جس کو دیکھا ہے وہ مفعولی حالت میں، اس لیے 2 زبر اور ایک الف کے ساتھ آیا ہے، اس کے میں نے دیکھا ایک مسلمان کو، ٹھیک ہے؟ پھر یہ مسلمین کو ہم نے جملے میں اس طرح کہا ہے سلامتو، میں نے سلامتی بھیجی، اللہ معنی پر، مسلمین ایک مسلمان پر۔ دیکھیں یہاں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اس کی پوزیشن چینج ہوگی، یہاں فاعلی حالت میں تھا، یا مفعولی حالت میں تھا، یا آنا جلدی حالت میں تھا۔ تو
सलमतु अला मुस्लिम, मैंने सलामती भेजी एक मुसलमान पर। ठीक है, फिर हमने बनाया था कि तस्निया जो बनाया था हमने, मुसला जिसे हमने कहा था, तो मुसलमानी असल में मुस्लिम को अगर हम वो रफ़ा की हालत में बनाएंगे तो उसकी साउंड आने की होगी। किसकी होगी साउंड? आने की। तो यहाँ मुसलमानी हो गया यानी दो मुसलमान, और नसब और जर की जो होगी ऐनी की साउंड होगी आखिर में। आखिर में उस लफ्ज़ की साउंड किसकी होगी? ऐनी की। तो मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, इसके माने भी दो मुसलमान, इसके माने भी दो मुसलमान, इसके माने भी दो। ये लेकिन स्टेटस इसका यह है कि एक फाइली हालत में है, एक मफूली हालत में, एक इजाफी हालत में, यानी एक रफ़ा में है, एक नसब में है और एक जर में है। इसको हमने जब मुसलमान किया तो आमतौर पर जो फाइली जुमले होते हैं उसका फेल वाहिद इस्तेमाल होता है। तो जा आ मुसलमानी, आए दो मुसलमान। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन पता चल रहा है आने का काम कौन कर रहे हैं? दो मुसलमान कर रहे हैं। जा आ, आए दो मुसलमान। राय तू, मैंने देखा, मैं फाइल हूँ। मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमैनी मैंने देखा दो मुसलमान को। क्लियर होगा नहीं बस, इसलिए इस्तेमाल करके जुमले में करके आपको। सलामतु, मैंने सलामती भेजी, फाइल मैं हूँ। अलल मुस्लिमीन, दो मुसलमान पर। ठीक है, जमा का हमने बताया था कि रफ़ा में जब जमा बनाओ तो ये जो हम बना रहे हैं ये सालिम जमा है, इसको कहते हैं सालिम जमा। लिख देता हूँ शायद ये कि ताकि जमा दो किस्म की होती है, एक सालिम होती है और एक का नाम क्या है? मुकस्सर, जमा मुकस्सर। ठीक है, मुकस्सर माने टूटा हुआ। ये सालिम पूरा मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम मुकम्मल है, सालिम है, सिर्फ नूना वाव और नून जबर बढ़ाया गया है, इसलिए इसको सालिम जमा कहते हैं। तो रफ़ा में जो इसकी होगी, जब भी रफ़ा में हम सालिम जमा बनाएंगे तो वाहिद के आगे हम वाव और ज़बर वाली नून बढ़ा देंगे। वाव सुकून वाली वाव और ज़बर वाली नून बढ़ा देंगे, तो ये मुस्लिम हो गया। तो इसके माने हो गया सब मुसलमान। सब मुसलमान। फिर ये है कि मुस्लिमैनी, मीना, ये ऐनी की साउंड थी, इसमें गालिब भी कर दिया। ये ऐनी की साउंड थी और ये मीना। ठीक है, ये ऐनी के साथ इसमें मैनी और इसमें मीना, मीना की साउंड। ठीक है, तो मुस्लिमूना रफ़ा में है तो सब मुसलमान, रफ़ा में जमा सालिम मुस्लिम का, मुस्लिमूना यानी सब मुसलमान। मुस्लिमीना, ये भी सब मुसलमान, इसके माने मुस्लिमीना रफ़ा में यानी जर में तो सब मुसलमान। अब इसको कह रहे जा आ माने आया या आए, जमा आए कहेंगे। मुस्लिमूना, तो काम करने वाले कौन है? मुस्लिमून, सब मुसलमान काम करने हैं। क्या काम किया उन्होंने? आने का काम किया। जा ये माजी का है, आए इसका मतलब कि माजी का है। जा मुसलमान, सब मुसलमान आए। रायतू, मैंने देखा, मैं फाइल हूँ। मुस्लिमीना, इसको देखा, सब मुसलमानों को। सलामतु अलल मुस्लिमैनी, मैंने सलामती भेजी अलल मुस्लिमैनी, सब मुसलमानों का। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब आइए मोहन्नस का थोड़ा सा, ये जो फाइल पढ़ा रहा हूँ ये आप बाद में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि जुमला का इस्तेमाल हमें पता चल जाए। ये फाइल जो है अभी आप हम इसे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर भी नहीं दे रहा।
تو جب مونس آتی ہے تو یہ جا ہے، لیکن مونس کے لیے غائب میں جاعت کہیں گے. جاعت مسلمات، ایک مسلمان عورت آئی. جاعت مسلمات، ایک مسلمان عورت آئی. رائتو مسلماتن، میں نے دیکھا ایک مسلمان عورت کو. تن ہے لیکن یہاں الف کیوں نہیں لگا؟ یہ ایکسیپشن ہے کہ بولتے پہ الف ممدودہ پہ الف مفتوحہ پہ الف نہیں لگتا ہے. سلمتو علی المسلماتین، میں نے سلامتی بھیجی ایک مسلمان عورت پر. دیکھیے تینوں کے معنی سیم ہے لیکن ان کی پوزیشن دوسری. ایک میں فائل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں اضافی ہے. مسنا جو ہے اس کا بنانے کا طریقہ مسنا کا سیم ہے کہ وہ آنے تھا یہاں پر اور یہاں تانے ہوگا بولتے کی وجہ سے. جاءت مسلمتانی، تو آئیں دو مسلمان عورتیں. رائتو مسلمتین، مسلمتینی اینی کے بعد سلام آئی یہاں آئی تو تے کا صرف اضافہ ہوگا. رائتو مسلمتینی کیا معنی ہوا؟ میں نے دیکھا دو مسلمان عورتوں کو. ماشاء اللہ. سلمتو علی المسلمتینی، میں نے سلامتی بھیجی دو مسلمان عورتوں پر. لیکن جمع جو ہے یہ مختلف ہوتی، واحد کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ ملا کے ہم نے جیسے بنایا ہے. جو ہوتی اس میں بولتے کے بعد بولتے کو ایک طریقہ یا بولتے کو مٹا دیں اور آکن لکھیں، ٹھیک ہے، یا ایسا کہ اس کو الف لگا کر پہلے بولتے کو بول دیں. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ بولتے جو ہے یہ اس بولتے کو آپ مٹا دیں اور الف کے بالکل بنا دیں. اور یہ پہچان ہے دو پیش اور ایک پیش رفع کی پہچان ہے. یہاں پہ یہ پہچان دوبارہ آ رہی ہے. مسلماتن، تو سب مسلمان عورتیں آئیں سب مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے، اس میں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے اس میں تھا کہ حرکت کی وجہ سے اعراب بالحرکہ، اعراب بالحرکہ، اعراب بالحرکہ، یہ اور یہ تمام جو مکسر ہے یہ اعراب بالحرکہ سے شروع ہو گئے. رائتو مسلماتان، یہ دیکھیں الف لگایا اس میں دو زبر کے بعد. رائتو میں نے دیکھا، کیا معنی ہوا؟ رائتو مسلماتن، میں نے دیکھا سب مسلمان عورتوں. سب. مسلمان، سلمتو علی مسلماتن، میں نے سلامتی بھیجی سب مسلمان. ٹھیک ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ جب اس وقت ہوگا رفع کا استعمال کہ جب ہم فعلی جملہ بنا رہے ہوں گے، فعل والا جملہ ہوگا تو تب آنا یہ رفع فاعلی حالت میں ہوگا، حذفی حالت میں، اضافی حالت میں. ورنہ عام طور پہ جو اس کی بیسک شکل ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 85% جو ہے معرب منصرف ہے. 85% معرب منصرف ہے. اس کا معنی یہ اسم میں جو ہے 85% جو ہے دو پیش، دو زبر اور دو زیر سے آئے گا. کتنے فیصد ہے؟ 85%. اس کے بعد جو 12% اس میں ایک پیش، ایک زبر، ایک آئے گا. 2% جو ہے وہ مبنا، اس میں ساری شکل سیم ہوتی ہے تو وہ عیسیٰ جیسے، ٹھیک ہے، مشابہ یا جو بھی ضمیر ہوا یا اشارہ ہوا، یہ سب جو ہے ہر حالت میں رفع میں ہو، نصب میں ہو، سب میں ایک ہی شکل ہوتی ہے. تو آئیے اب آپ یہ کلیئر ہو گیا. اس میں کوئی سوال کرنا ہے کیونکہ یہ سبق ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. نیا ٹاپک ہمارا ہے وسعت پر کیپیسٹی. دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا کہ 85% ہوتا ہے. جو تنوین سے جو لفظ ہیں، جو کلمے ہیں، وہ 85% ہے. اس لیے سب سے زیادہ وہ ہے. اور نکرہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس میں تنوین ہوتا ہے. وسعت میں ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے. نکرہ کی پہچان ہی یہی کہ وہ ہے. تو ہم ہمیشہ کی طرح آسانی
तलाश करते हैं और आसान करने के लिए कि तमाम कलमे जो इस्म के हैं वो नकरा है। जब तक मारफा के हम जो चार्ट बना रहे हैं उसके अंदर ना आता हो। जैसे हमने मुन्नस कहा था कि तमाम मुज़क्कर है, अगर इस मुन्नस की इस चार्ट के अंदर में वो ना आ रहे। क्लियर? तो हमने आसानी के लिए ये कहा कि तमाम जो है वो नकरा है जब तक मारफा के उसमें ना आ रहा हो। और हम इस नकरा को भी मारफा बनाने के लिए अल लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं मारिफ बिल्लाम, जो मारिफ बिल्लाम कहते हैं इसको, एक ये कैटेगरी है मारिफ बिल्लाम। अब ये पढ़ लें, एक आदमी पढ़े दूर से, नजर आ रहा है? किसी आम चीज़ या जगह का नाम नकरा कहलाता है। अरबी ज़बान में इसमें नकरा की पहचान ये है कि इस लफ्ज़ के आखिर हर्फ पर तनवीन मिलेगी। तनवीन दो पेश दो ज़बान दो जगह, मुस्लिमुन, रजुलुन, मोमिनुन, मुफ्लिहुन। ये पहचान क्लियर है, कोई इतना वो तो नहीं। और ऐसे भी आप माशाल्लाह इसको दोहराते रहेंगे तो आप पढ़ें मारफा का। मारफा किसे कहते हैं? किसी खास जगह या किसी खास चीज़ या जगह का नाम मारफा कहलाता है। अरबी में इसकी पहचान इस लफ्ज़ की शुरू अल आता है। अल किताब, अल कुरान, अल मुफ्लिहून। तो ये अल लगा के ये है ना ख़ास किताब है, और कुरान एक ख़ास किताब है, और फलाह पाने वाले ख़ास फलाह पाने वाले उलाए का मुफ्लिहून, बेशक ये लोग फलाह पाने वाले। अल लग जाएगा तो मारफा हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। अल लगा एक ये पहचान है कि अल लगा के बनाते, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे बिल्लाम, मारफा बिल्लाम एक कैटेगरी में है मारफा बिल्लाम। अच्छा, इसमें मारफा की कई अक़साम हैं। इसमें अलम क्या है? किसी मखसूस नाम को इसमें अलम कहते हैं। कोई भी नाम हो, जैसे मुल्क का नाम है वो भी क्या होगा? इसमें अलम। अजीज साहब का नाम है, इसमें अलम। ठीक है, चाहे उस पर तनवीन लगी हो। और अलम में आम तौर पे जब तक अरब अलिफ लाम ना लगाए आपको इजाज़त नहीं है अलिफ लाम लगाने। बाज़ मुल्क में उन्होंने अलिफ लाम लगाकर लिखा है, बाज़ में थोड़े से मुल्क हैं जिसमें अलिफ लाम लिखा, शाम, अल जज़ीरा जैसे, ठीक है ना, अशाम, शाम के मुल्क को अशाम कहते हैं, शाम सिर्फ नहीं कहते। तो जहाँ वो लगाते हम उनकी ज़बान सीख रहे हैं, उनकी तरह हम भी लगाएंगे, लेकिन आम तौर पे लगता नहीं है। किसी नाम में अल नहीं लगता। हम देखते हैं अल बुरहान लिखा, अल फुरान लिखा, नाम के आगे भी अल हबीब लिखा है, तो वो हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस जगह अरबी लिखता है अल, तो वहाँ हम लिखते हैं। तो जैसे मोहम्मदुन है, आपके कई भी सुना होगा अल लिखा होगा, अल मोहम्मदुन लिखा होगा, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है, अगर अरबी अल पाकिस्तान लिखता है तो आप वरना पाकिस्तान लिखेंगे। मूसा, सबकी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन ये मखसूस है, इसका ये पहचान नहीं है, बल्कि ये देखना पड़ेगा ये किसी मखसूस शय का नाम तो नहीं है। जैसे मस्जिद तो सेम है, मस्जिदुन है सारी मस्जिद, लेकिन नुमान मस्जिद, अल नुमान मस्जिद, तो नाम जो है वो जहाँ नाम होगा तो वो मखसूस हो जाएगा नाम, वो मारफा होगा। अच्छा, इसमें ज़मीर दूसरी, इस मारफा की पहचान क्या है? तमाम ज़मीर जो है वो मारफा होती है। इसमें ज़मीर किसी नाम की जगह इस्तेमाल होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते मोहम्मद आया, मोहम्मद ने बैठा, मोहम्मद ने किताब पढ़ी, बल्कि उसके लिए हम उस नाम की जगह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीर कहलाता है। तो इसमें ज़मीर मबनी इसमा है, यानी इसमें रफ़ा में भी सेम होगा, नसब में भी सेम होगा, और जर में भी सेम होगा। तो इसमें ज़मीर मबनी इसमा कहलाते हैं, रफ़ा नसब के आर्थ में तब्दील होते हैं। जैसे हुआ वो, अंता तू, अना मैं, ये एक इसमें रब था किसी मकसूद का नाम, इसमें ज़मीर जो नाम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इशारा, नाम से ही ज़ाहिर है
तो इशारा किसी पॉइंट करना, किसी जगह पॉइंट करने को इशारा कहते हैं। इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की भी दो किस्म होती है, इशारा करीब और इशारा बाई। करीब के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजी, दूर के लिए ज़ालिका और मुअन्नस के लिए तिलका। ठीक है, तो ये एक इसमें इशारा भी है जो हम तफसील में पढ़ेंगे, ये भी तफसील से पढ़ेंगे, ये भी तफसील में पढ़ेंगे, ये भी तफसील में पढ़ेंगे। इसमें मौसूल अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों तरीके से लिया जाता है। यानी कि एक को अल्लज़ीना अल्लज़ी करते हैं, जैसे दैट और दोस्त जैसे कि लिया जाए, दैट और दोस्त। तो लेकिन इसके अलावा एक और तरीका हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु माने होता है कौन, हु माने कौन, लेकिन शुरू में जब हु होता है तो उसके माने कौन होता है, लेकिन दरमियान में अगर हु आएगा तो उसके माने होगा जो। इसी तरह माँ माने होता है क्या, ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी ये बता दे रहा हूँ सिर्फ। माँ माने होता है क्या, लेकिन माँ अगर दरमियान में इस्तेमाल होगा तो उसके माने होगा जो। ठीक है, इसकी मिसाल ये है, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमान में और ज़मीन में। सही हो गई। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, मा माने जो, असल में वहाँ के माने वो क्या होता है, लेकिन यहाँ बीच में आया इसलिए मा माने जो आसमान में और ज़मीन में। मन फिस समावाति, जो आसमानों में है। ठीक है, ये तो एक इसमें मुफीद हो। अब ये कि थोड़ा सा अब इसे प्रैक्टिस करनी है कि इसमें ज़मीर की पहले इसमें ज़मीर को ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये, और मैं एक और जब अगली क्लास करूँगा तो उसमें हर्फ जर को भी कर दूँगा, ताकि ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़मीर का रफ़ाई हालत, अच्छा आप आवाज़ दे रहे जी, मैं तो इसमें ज़मीर जो है इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें जो वो ज़मीर रफ़ाई हालत में जो होता है वो जुड़ता नहीं, किससे अलग रहता है, सेपरेट। ठीक है, मुनफसला उसे कहते हैं, अलग फासले के साथ। ठीक है, मुनफसला फासले के साथ होता है। तो और मुत्तसला जो जुड़ा हुआ होता है, दो किस्म की ज़मीर होती है, जो जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं नस्बी हालत, नस्बी और जरी हालत, और जो रफ़ाई होती है वो हमेशा अलहदा होती है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये है कि हमने अपने दाहिने हाथ को, सीधे हाथ को मुज़क्कर के लिए मखसूस किया हुआ है। इसको दाहिने हाथ को, आपका दाहिना हाथ इस तरफ है तो उसको मुज़क्कर के लिए किया हुआ है, और बाएं हाथ को मुअन्नस के लिए। एक उंगली से इशारा को हमने वाहिद किया हुआ है, दो को मुस्ना, और सारा उंगलियों से खोल के हम जब इशारा करेंगे तो जमा। इसी तरह मुअन्नस के लिए जब इशारा करेंगे एक उंगली से वाहिद का और दो उंगली से मुस्ना का, और सारी उंगली से जब इशारा करेंगे तो जमा। अब ये हो गया, ये दूर तो दूसरा ये मतलब गायब है, थर्ड पर्सन। उधर इशारा किया वो, तो एक से वो इशारा किया, वो दोनों, ठीक है, और वो सब, वो दोनों और वो सब। ठीक है, जब सामने करेंगे तुम तो एक से तू, और तुम दोनों के लिए तुम दोनों, और वो तुम सब। इसी तरह बाएं हाथ से हम इशारा करते हैं औरतों के लिए, तो यानी मुअन्नस के लिए, तो तू, तुम दोनों और तुम सब। अब अपनी तरफ इशारा करना है, ये जो है हमारा, ये इसको कहते हैं हाजिर,
जिससे बात की जा रही हो, जैसे सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन ये हुआ मैं या हम, ठीक है, तो मैं, हम दोनों और हम सब। तो ये औरत के लिए भी, औरत बोलेगी मैं, हम दोनों, हम सब, लेकिन गायब थर्ड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन के लिए औरत और मर्द का अलग अलग शब्द है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक दफ़ा हर कोई एक एक मरतबा इसको दोहराएगा, ये मानी के साथ। मेरा ख्याल आपके नंबर है कितने बोले हुआ, पहले गायब मुज़क्कर, हाँ गायब मुज़क्कर वाहिद हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, वो दोनों माने भी करते हैं, वो दोनों, हाँ हुम वो सब, इसमें एक दफ़ा बोले हुआ गायब मुज़क्कर वाहिद हुआ, हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब। वो सब। अब आपको पढ़ेंगे ये अलगायब मोहनस, पढ़े अलगायब मोहनस हिया वाहिद हिया हुमा हुन्ना, और हुमा वो दोनों, हुन्ना हुन्ना वो सब। ठीक है। इधर आगे इशारों से करूँ मैं? हाँ इशारे पहले तो सीधे हाथ से लूँ तो वो मुज़क्कर का होता है। तो हिया हुआ नहीं हुआ से हुआ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, वेरी गुड, अच्छा, अंता अंतुमा अंतुम, वेरी गुड, अंती अंतुमा अंतुन्ना, वेरी गुड। अच्छा, अना अना में अना और नहनु, दोनों हाथ से करें आना, एक मिनट से, यानी ये मुज़क्कर मौजूद अना दोनों का ही करें। अना नहनु नहनु, वेरी गुड, कवर कर दिया। ये सिर्फ ये इसको याद करने की वो है कि इसको आप जब तक करते हैं। अब आप बोलिए फिर से, गायब मुज़क्कर, गायब मैंने थर्ड पर्सन ज़हन में रखिएगा, हुआ बोले, हुआ गायब हुआ, वो हुमा वो दोनों, हुम वो सब, जमा हुम वो सब, और के लिए हिया हुमा हुन्ना, हिया वाहिद है वो, हुमा वो दोनों, मोहन्नस, हुन्ना वो सब जमा है, ठीक है। इशारा करके करें अभी तक आप, इशारा करें, हुआ हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हिया हिया हुमा वो दोनों, हुन्ना वो सब। अच्छा, अंता अंता मेरी तरफ, अंता अंता तू अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब, अंती अंती तू बाएं मुअन्नस, अंती तू अंतुमा तुम दोनों, अंतुन्ना तुम सब, अना अना मैं, नहनु नाहनु हम दोनों, नहनु हम सब, हम सब। ठीक है। अब कौन इनके अलावा कौन आएगा यहाँ खड़े होकर करेगा? गलती की कोई फिक्र नहीं करे, ये प्रैक्टिस करने के लिए। अगर गलती भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसको आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा इस तरह। पहले देख लीजिए दफा, अगर आपको हुआ फिर सोच रहे अच्छा भी कर ले, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा मुन्ना, ठीक है। अंता अंतुमा अंतुम, ठीक है, अंती अंतुमा अंतुन्ना, वेरी गुड। अना मैं, दोनों हाथ से, अना नहनु दो उंगली से, नहनु और हम सब नहनु। आप आएंगे? आइए कौन? हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती। अच्छा ये याद रखिएगा, जो मुज़क्कर है उस पर ज़बर है, जो मुअन्नस है उस पर ज़ेर है। अंता उधर से अंता, अंता अंतुमा अंतुम, अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु नहनु। आप
हुआ हुआ हुमा हुमा हुम हुम हिया हिया हुमा हुमा हुम अंता अंता अंतुमा अंतुम अंतुम अंति अंति अंतुमा अंतुमा अंतुन्ना अंतुम अना अना नहनो नहनु नहनु। नहनु। वेरी गुड, सबने कर लिया माशाल्लाह। अजीज साहब आप तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप मास्टर हैं। अच्छा, तो ये जो है हमें प्रैक्टिस करने के लिए ये हम हर क्लास से पहले कर लिया करेंगे, ताकि ये कि हमें इस्तेमाल से हो जाए। अब देखिए, आप किसी से कहेंगे मसमू का तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आना अपना नाम देंगे, ठीक है। मैं अना यूसुफ। मसमू का इसलिए कि माँ माने क्या होता है, माँ माने क्या, और ये होगा इसमें का यहाँ जो होता है ये सही लगने की वजह से इसको साथ पढ़ते हैं। इसका तुम्हारा नाम क्या है, या तो कहेंगे इसमी, इसमी माने मेरा नाम, या कहेंगे अना, मैं जो हूँ यूसुफ। जैसे उन्होंने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अना यूसुफ व हाजा अब्दी, और ये मेरा भाई पढ़ा होगा ना। तो इस तरह जो है, इसलिए आप जैसे जैसे रखेंगे, आप आके आस्ते आस्ते पढ़ेंगे तो समझ में आपकी याद आएगा, यार हाँ ये पढ़ा था हमने, इसकी मानी ये। तो ये जो है एक बहुत, और फिर इसके साथ आप जब नज़मी पढ़ेंगे तो आपको और होगा, इस तरह जब जर पढ़ेंगे और होगा। तो मैं अगली दफ़ा इसको भी रखूँगा और हरफ जर को लिखूँगा। हरफ जर जो है 12 है, जिसे 12 जो ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, और वो आपको हैरत होगी कि तकरीबन 8,500 से ऊपर इस्तेमाल हुए। टोटल जो अल्फाज हैं कुरान के 78,000, जिसमें से 8,500 की यही, बाकी कितना रह गया। इसी तरह ये जो है ये इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, ये है 6,500 मतलब। लेकिन अटैच जो ज़मीन है इसके बाद वाली ज़मीन, जिसे हम नस्वी ज़मीन कहेंगे, वो अटैच होती है। ये अलग अलग होगी। ये हुआ, अच्छा हुआ रब का क्या मान हुआ, वो तेरा रब है, हुआ रब, ठीक है। कुल माने कहते कहो, हुआ अहद, वो एक है, हुवल्लाहु अहद, तो वो एक है, ठीक है। तो ये जो है ये तमाम चीज़ हमेशा ये आपको हुआ रब्बुल करीम, वो बहुत करम करने वाला रब है। तो आप ये सब इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको इसके मानी आते होंगे और पोजीशन याद होगी तो आपको पता चलेगा ये 2 है तो इसके लिए क्या करूँगा, और 2 से ज़्यादा है तो क्या करूँगा, ठीक है ना। जैसे दफ़े में कर देता हूँ ताकि याद रखिएगा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुमना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुमना, अना, नहनु, नहनु। तो इस तरह करके आपको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। और फिर ये जब अटैच याद करेंगे तो अटैच जो है आपको हर आयत में एक मिल जाएगा, तो इससे पता चले कि आप कितना इस्तेमाल। इसकी क्वांटिटी नहीं बताते लोग, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा कि मिन किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, हुआ कितना इस्तेमाल हुआ है, या क्या कहते हैं जो अटैच हुआ होगा जितने भी, वो कितने कितने होगा। कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। तो ये तो जरूर बताऊँगा कि मैं आपको जब हरफ जर पढ़ाऊँगा। हरफ जर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत है। प्रीपोजिशन जो है आम तौर पर बहुत काम आएगी। अभी तो ये सब के लिए आ रही है ना, कि से मिन बगैर इसके जुमला नहीं होता, लेकिन प्रीपोजिशन इंग्लिश में भी और अरबी में भी। मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ, बस इसके बाद क्लास खत्म करें, आपको कोई सवाल करना सवाल करें। जैसे होता है कि टेक माने लेना, टेक ऑफ,
लेकिन इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ, तो उसके माने क्या होता है? उड़ना, टेक ऑफ, टेक ऑफ करें, ठीक है। टेक ओवर, कब्जा कर लेना, टेक इनटू यानी कि तो ये जो है हम जितनी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आमतौर पे लोग को जैसे खातामा के माने कंप्लीटेड है, लेकिन खातामा अला कहेंगे तो मोहर लगाना होगा, इतनी अलग चीज़ है। खातामा माने कंप्लीटेड और खातामा अला कहेंगे तो मोहर लगाना, ठीक है। इस तरह से है ये फ्रेज में भी ऐसी है, इंग्लिश में भी ऐसी है, लेकिन इसका कोई भी वो नहीं है कि भाई यहाँ ओवर क्यों कर रखा, अब दूसरी जगह ओवर नहीं लगाया आपने, ओवर यहाँ लगा दिया, नहीं, ये सिर्फ याद करने का है। हमें सबसे दुश्वारी इसी में होती थी कि पता नहीं कहाँ से यार, हमने तो ओवर माने ऊपर हो रखा, तो हम जो गलती करते थे उसी की करते थे कि टेक ओवर मैंने उसने ऊपर लिया, कुछ इस तरह करके करते थे लोग, तो टेक ओवर के माने जो इस तरह ये फ्रेज है, ये आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। जैसे ज़हाबा बी, ज़हाबा माने गया, ज़हाबा बी माने साथ ले गया, ठीक है ना। इस तरह ये कि इसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये आप यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कर। कोई सवाल? आखिरी ये क्या हमारा टाइम हो गया, चलो 22 हो गया, हम ये देर से शुरू कर। ये कोई हमारा अगर साथी खड़ा होकर दुआ करा दे तो हम उसके लिए ममनून होंगे। कोई है साहब? आइए आइए, दुआ करें ताकि